ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪ੍ਰਿਥੀਵੰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 23 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MBBS MS ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1990 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਰੁਚਿਕਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੁਚਿਕਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ USA ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥੀਵੰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ MBBS ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਖਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। विघ्न हरे सब पाप
बस जावे, जहाँ हो राम नाम गुण नाम, भागे वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जय राम सुना, होवे वह जन पूरन काम, चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, राम राम जप दोष विनाशी, निबोधेश श्रवण खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज बहुभान, अजपा जाप भी करो शांत, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे, राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जपिया, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुख का, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापसी योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख कर, पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान, करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान, इसमें स्मृति सुर रमाते, राम राम स्वर साथ समाते, देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, साथ सरस संग साधनवान, गोपक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, गोदा तीनों लोक में राम नाम गुण गान, विद्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बेताल, विद्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप कार, नित्य है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम राम जप सत्य निधान,
जो सिमरिए राम राम एकता परम पाठ पावन परम पतित अधम देता गुण राम कृपा दिन रात राम कृपा हरि सब उत्पाद राम कृपा लेवे अंत संभार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्च तरियो राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मन राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कह पाना मन में राम धुन जब फेरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं न नाम में हो करनी जैसे जल में हो मीन अधीन राम कृपा भरपूर मैं पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे इसमें आप ही राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्याल जंजाल हर लेनी कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जप अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण सिया राम बिना दुख कौन हरे दीनों का पालन कौन करे सिया राम बिना मेरे राम बिना कौन है अपना सभी है पराए बुझे दिए को कौन जलाए कौन है अपना सभी है पराए बुझे दिए को कौन जलाए भरी हुई गागर सब छीने भरी हुई गागर सब छीने खाली गागर कौन भरे खाली गागर कौन भरे सिया राम बिना दुख कौन हरे दीनों का पालन कौन करे सिया राम बिना मेरे राम बिना जग है ऐसा गोरख धंधा और उलझता जाता बंदा जग है ऐसा गोरख धंधा और उलझता जाता बंदा कैसे आऊं मैं द्वार तिहारे कैसे आऊं
जिनका नाम ही भावना, भावना मतलब चंद्रमा, इमोशनल, जिसको इमोशन कहते हैं, वो भाव हमारा, जिनका नाम ही चंद्रमा का माता था, वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। भगवान उनके आत्मा को शांति दें। भगवान श्री हरिनारायण अपने चरणों में उनको स्थान दें। इस कामना के साथ हम लोग गरुड़ पुराण का फलश्रुति सुनते हैं। जो भी गरुड़ पुराण को सुनता है, बांचता है, उसको स्वर्ग आदि उच्च लोक की प्राप्ति होती है। वो कभी भी नरक में नहीं जाता। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से, हे भगवान, आपने इस युग का यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, सत्संग, जो भी नाना प्रकार के पुण्यादि कार्य हैं, जो इस जीवन में सुख को देने वाले हैं, वैभव को देने वाले हैं, शांति को देने वाले हैं, वह सब आपने हमको बतलाया। लेकिन भगवान, जब जीव इस लोक से शरीर छोड़ करके जाता है तो कहाँ जाता है, उसको कैसे कर्मों का फल प्राप्त होता है, कौन सी योनि प्राप्त होती है, इन सब का विस्तार पूर्वक से वर्णन कीजिए। गरुड़ जी की बात सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, यह जो जीव है ये दोनों जहां का मालिक है। इसका प्रवेश अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है। जैसे रात और दिन में भी हवा बहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको बाधा नहीं करती। लेकिन वही हवा शीशा के बॉक्स में, जैसे शीशा को बच्चा का रूप माना गया है, उस शीशा के बॉक्स में अगर वो हवा बंद हो जाए तो शीशा के अंदर जो हवा है और जो शीशा के बाहर हवा है वो अलग अलग हो जाएगा। दोनों जहां में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। शीशे के अंदर बाहर हवा निकल नहीं सकता, शीशे के अंदर पारदर्शिता है, लेकिन फिर भी वह हवा एक बच्चा के रूप में उस डब्बे में बंद हो जाता है और इस जहां में आ जाता है। वह हवा सांसों के द्वारा आता है और जाता है, और जब तक वह हवा इस शरीर में रहता है तब तक वह जीव इस शरीर में रहता है। जैसे ही वो बॉक्स टूट जाती है, वह हवा फिर दोनों जहां का मालिक हो जाता है, वो परमात्मा से एक हो जाता है। इसके बीच में जो बाधा होती है वो हमारा बुद्धि होता है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम नाना प्रकार के कर्म करते हैं और कर्मों के द्वारा ही नाना प्रकार के हमें योनि प्राप्त होती है। गरुड़ जी भगवान से भगवान जी से कहते हैं कि गरुड़ जी, जब जीव इस जहां में आता है तो चार प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। बहुत ऐसे जीव हैं जो अंडा से उत्पन्न होते हैं, बहुत ऐसे जीव हैं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, बहुत जो है जमीन से ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के जीवों को बताया गया है। फिर कहते हैं कि छातीलता जो है वो जड़ योनि है। उस योनियों में जो लोग आते हैं वो चलने फिरने में भी असमर्थ होते हैं, बोलने में भी असमर्थ होते हैं, और नाना प्रकार के मोह के कारण वो जड़ता को प्राप्त हुए हैं। उससे उत्तम योनि बताया गया है पशु पक्षी का, जो चल फिर सकता है, बोल भी सकता है अपने भाषा में। लेकिन सबसे दुर्लभ योनि कहा गया है कि सबसे दुर्लभ योनि में जब जीव आता है उसे मनुष्य योनि कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास मन है और मन से मनुष्य चाहे तो स्वर्ग में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। तो जो लोग नाना प्रकार के कर्म करते हैं वो अपने ही कर्मों द्वारा बंधन में बंध करके और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, और कर्मों के हिसाब से उनका जब यात्रा समाप्त होती है तो लास्ट जन्म में उनको मनुष्य योनि प्राप्त होता है। और मनुष्य योनि में आकर के आदमी फिर मोह माया में फंस जाता है और फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता है। ये 84 का चक्कर भवसागर है जिसका कोई किनारा नहीं है। जिसका किनारा हो उसे पार किया जा सकता है, लेकिन जिसका किनारा ही नहीं उसे पार नहीं किया जा सकता है।
सबसे बड़ी अग्नि को माना गया है। अग्नि लोहे को भी जला देती है, अग्नि को पानी बुझा देता है, पानी को मनुष्य समाप्त कर देता है। पानी को पी करके हम मैल रूप में शरीर से बाहर कर देते हैं, लेकिन मनुष्य को मृत्यु सवार होकर के मनुष्य को भी समाप्त कर देती है। तो सबसे बड़ा जो उपमा दी गई है वो मृत्यु को दी गई है, किसी को छोड़ता नहीं है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे मृत्यु को स्पर्श किए बगैर जाना नहीं होता है। लेकिन कहा गया है कि जो भक्त हैं, जो भगवान के सेवा में मगन हैं, उनको मृत्यु भी स्पर्श नहीं करती है। मृत्यु से बचने के लिए, कर्मों से बचने के लिए भक्ति सबसे बड़ा उपाय बताया गया है। जैसे हमारे ध्रुव जी हुए, ध्रुव जी जहां में आए तो ध्रुव जी के जो पिताजी थे उनकी 2 शादियां हुई थी, जिनका नाम था उत्तानपाद। तो ध्रुव जी जो थे अपने पिताजी के गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी की जो सौतेली मां थी वो कहती है कि ये गोदी तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे पुत्र के लिए है। तुम्हें अगर अपने पिता के गोद में बैठना है तो मेरे शरीर से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, तब तुमको पिता का गोद प्राप्त होगा। ध्रुव जी को ये बात लगती है और अपने माँ के पास आते हैं। माँ उनको भगवान के रास्ता को दिखाती है कि तुम भगवान के रास्ते पे चलो, तप करो, भक्ति करो, जिससे तुम्हें भगवान की कृपा से तुम्हारे पिता का गोद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वह ध्रुव जी भक्ति करते हैं और भगवान प्रसन्न भी होते हैं और उनको वह लोक देते हैं जो सबको दुर्लभ है, ऋषियों को भी दुर्लभ है, ध्रुव लोक। ध्रुव मतलब कील, सब कुछ पिस जाता है लेकिन कील कभी डगमगाता नहीं है। तो ध्रुव जी जब इस जहां से जाने लगे तो मृत्यु आकर के उनके सामने प्रकट होती है और कहती है कि जो इस मृत्यु लोक में आया है मुझे बगैर स्पर्श किए नहीं जा सकता। तो बशर्ते आप अमृत को प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको हमें स्पर्श करना होगा। तो जो भगवान का रथ था उस रथ पे ध्रुव जी सवार होने वाले थे ध्रुव लोक को जाने के लिए। तो पौड़ी के जगह पर मृत्यु आकर के अपना सिर लगाती है और कहती है कि हमारे सिर पे अपना पैर रख करके आप रथ में सवार होइए, जब तक हमें स्पर्श नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह विधि का विधान है। तो ध्रुव जी मृत्यु के सर पे पैर रख करके और ध्रुव लोक को गए। तो इसलिए कहा गया है कि जन्म लेना दुख का कारण है और हर सुख दुख का बीज है। कोई भी सुख ले लीजिए, आज वो सुख रूप में हमारे पास आएगा, अकल जब बिछो होगा तो वही हमारे लिए दुख बन जाएगा। तो इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है नहीं, सब कल्पना और सपना है। जैसे हम मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन नाना प्रकार के तीर्थ यात्राएं करते हैं, यात्रा में जाते हैं, जितना दिन के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बेचैनी होती है कि हमें घर जाना है। हम घर के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आने के लिए, लेकिन जब हम इस जहां में आते हैं और इस संसार की माया में जब हम फंस जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं और यहाँ पे नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के हमें भोग मिलता है और उन्हीं भोगों के द्वारा हमें नाना प्रकार का दुख मिलता है और उन्हीं दुखों के चलते नरकादि का जो यहाँ वर्णन हुआ है कि जीव कर्म करके और नर्क में जाता है और नाना प्रकार का नर्क होता है और नर्क कहीं बाहर नहीं ऐसी जहां में है। कहा गया है कि धूल, मिट्टी को मां कहा गया है और उसी मिट्टी को सूर्य के प्रकाश से जब वो मिट्टी जलती है तो धूल बन जाती है और धूल बन करके हवा में मिल जाती है। तो हवा लेना भी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और जो आत्म तत्व सूर्य को कहा गया है उस पे धूल छा जाता है और जिंदगी में नाना प्रकार का दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस जहां में आकर
लेकिन कर्म कौन सा कर्म करना चाहिए? परमार्थ का कर्म करना चाहिए, भक्ति का कर्म करना चाहिए, समाज का कर्म करना चाहिए। स्वयं बना के स्वयं खाना बहुत बड़ा पाप है। अपने लिए ही कमा के अपना पेट पाल लेना बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा करिए जहां पे आकर के कि खुद खुशहाल रहिए, अपने अड़ोस पड़ोस सबका ध्यान रखिए। हर जीव ब्रह्म है, हम उसी ब्रह्म के अंश हैं और उन अंशों का सेवा करना सबसे बड़ा परमार्थ है। तो जो जीव इस जहां में आता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उसके सारे पाप परमात्मा की कृपा से क्षय हो जाता है और वह परम धाम को प्राप्त करता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैंने सब अर्धदैहिक क्रिया की कथा कही, जो इस 10 दिन के अंदर सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों का यह आमुष्मिक कर्म मुक्ति, पुत्र की मनोकामनाओं को करने वाला परलोक तथा इहलोक में सुखदायक है। जो नास्तिक नराधम अर्धदैहिक क्रिया नहीं करते उनका जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा के तुल्य है। जिस माँ ने, जिस पिता ने हमें गोद में उठाया, उनका अर्धदैहिक क्रिया उनको अगर हमने अपने कंधे पे नहीं उठाया तो उससे हम मुक्त नहीं होते हैं। वैसे पुत्र को पुत्र कहना नहीं चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवता तथा पितर उनके घर की पानी नहीं पीते जो अपने माँ बाप का संस्कार नहीं करते। उनके कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते उनको चंडाल के समान जानना चाहिए। प्रेत कल्प को जो सुनता या सुनाता है दोनों पापों से मुक्त हो दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो माता पिता की मृत्यु होने पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने न गरुड़ पुराण सुना, न गया श्राद्ध किया, न त्रिकोट सत्कर्म किया, न मासिक श्राद्ध किया, न वार्षिक श्राद्ध किया, उसको पुत्र कैसे कहा जाता है? वह पुत्र कहने लाने का योग्य नहीं है। वह 3 ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है? अपने माता पिता के कारण में वो कैसे समर्थ हो सकता है? इसलिए सब प्रयत्न से गरुड़ पुराण सुनने से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्त होता है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कारक पवित्र करने वाला, पाप नाशक या गरुड़ पुराण सुनने वालों की इच्छा को परिपूर्ण करने वाला है। सर्वदा सुनना चाहिए। इसमें सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या ज्ञाता क्षत्रिय जमींदार वैश्य नहीं शूद्र पातक से पवित्र हो जाता है। सुनने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ करने वाले को पूर्वोक्त तथा दक्षिणा देना चाहिए। पहले गरुड़ पुराण की पूजा कर वस्त्र से आच्छादित कर गोदान दक्षिणा आदि से साधक वाचक को सत्कार करना चाहिए। बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्न दान, स्वर्ण दान, अधिक भूमि दान दें। भक्ति से पाठ करने वाले से कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से निसंदेह मेरी पूजा हो जाती है, इससे मैं संतुष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमान नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम शांति 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 ओम। सभी संगत से विनती है कि मंदिर के बैक साइड में लंगर लगा हुआ है, सब लोग जो है लंगर प्रसाद लेके जाइएगा। इनके नाम से अगर आप थोड़ा सा जल गिराते हैं, मतलब जलपान करते हैं, लंगर चखते हैं, तो इनके आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए सभी संगत से विनती है कि बगैर लंगर चखे कोई नहीं जाएगा, लंगर छक के ही जानी है। ओम शांति शांति शांति।